That is a sequence retrieval system. The retrieval system maintained by EBI, which is comparable to NCBI entries. It is not as integrated as entries, but allow user to query multiple database simultaneously. Another good example of database integration. And then be launched using the quick text search with only one query box in which to अपने को पता ही एक आपका टेक्स्ट बॉक्स रहता है, सर्च बॉक्स रहता है जहाँ पे आप अपना क्वेरी लिखते हो. There are also submission form such as the standard query form and the extended query form. जैसा अपन ने एंटरीज में देखा था, एक आपका एडवांस सर्च होता है, एक आपका नॉर्मल सर्च होता है. एडवांस सर्च में हम क्या करते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स यूज करते हैं टू मेक द क्वेरी मोर स्पेसिफिक, है ना. वैसे आपका जो SRS है, यहाँ पे 2 टाइप्स के सबमिशन फॉर्म होते हैं. एक आपका स्टैंडर्ड क्वेरी फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज द एक्सटेंडेड क्वेरी फॉर्म. In the standard form, allow the four criteria field to be used, which are linked by the Boolean operators. Boolean operators क्या है, and, or, and not, which is used to link the keywords. Okay. The extended form allow many more diversified criteria and a field to be used. Extended form में और ज़्यादा criteria और field रहेंगे, उससे आप जो अपना query है वो आप और ज़्यादा specific बना सकते हो. The search result contain the query sequence and the sequence annotation as well as link to literature, metabolic pathway and other biological databases. है ना. जब आप कोई भी चीज क्वेरी आपने लिखा, फिर आप जब सर्च करोगे तो जो सर्च रिजल्ट पेज अपना ओपन होता है, वहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा, you will get the query sequence annotation as well as link different biological database like literature, metabolic pathway and other biological database. क्योंकि SRS जो है ये भी क्या है आपका, is also a type of integrated search engine, है ना. वो क्या करता है, जो different databases में जो भी आपका आपने क्वेरी की है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर प्रेजेंट है तो वो उन सबके लिंक्स आपको प्रोवाइड करेगा. SRS is a homogeneous interface to over 80 biological databases developed by European Bioinformatics Institute EBI at Kingston, UK. The type of databases included are sequence and sequence-related, metabolic pathway, transcription factor, application results like BLAST, protein 3D structure, genome mapping, mutation, locus-specific mutation. These all are the type of databases present in SRS. One can access and query their content and navigate among them. The web page listing all the database contain the link to the description page about the database and include the date of last update, है ना. जैसा एंटरीज में मैंने आप लोग को बताया था ग्लोबल क्वेरी पेज होता है जहाँ पे सारे डेटाबेसेस आपके प्रेजेंट है, वैसे SRS का जो वेब पेज है जहाँ पर आपका सब डेटाबेसेस हैं, वहाँ पर लिस्ट जो प्रेजेंट है डेटाबेसेस की, वहाँ पर देयर इज ऑल्सो अ लिंक, वहाँ पे लिंक भी है टू द डिस्क्रिप्शन पेज, which will tell you about the database. If you don't know what that particular data is for about, you can click on the link. आप लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन पेज में जाके पढ़ सकते हो कि वो डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डेट ऑफ लास्ट अपडेट, वो डेटाबेस लास्ट कब अपडेट हुआ है वो डेट भी आपको वहाँ पर मिलेगा. One can select one or more database to the search before entering the query. Over 30 versions of SRS are currently running on www. Each include a different subset of database and associated analytical tool. Okay, total 30 versions of SRS are there in on internet, and each version contain different subset of database and associated analytical tool. How you can write the query in SRS? First is by accession number. Accession number क्या होता है? Accession number is a unique identification number given to the DNA or the protein sequence record in the database. है जो आपका सीक्वेंस डेटाबेस होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस और प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, वो क्या करता है, हर सीक्वेंस को एक आईडी नंबर देता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सेशन नंबर. इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू द डीएनए और द प्रोटीन सीक्वेंस रिकॉर्ड इन द डेटाबेस. ठीक है, तो जैसे कि ये जनरली जो आपका एक्सेशन नंबर है वो आपका इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड डिजिट. ठीक है, जैसा यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया है
ये J000231, ठीक है, एक आपका लेटर है और उसके बाद आपके 5 डिजिट्स हैं। सिमिलरली कुछ एक्सेशन नंबर में आपके 2 लेटर्स रहेंगे, अगर 2 लेटर रहेगा तो डिजिट्स जो है वो आपके 6 डिजिट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सेशन, यू कैन क्वेरी बाय एक्सेशन नंबर। अगर आपके पास एक्सेशन नंबर है तो डायरेक्टली आप एक्सेशन नंबर डाल के भी उस सीक्वेंस के बारे में स्टडी कर सकते हो। सेकेंड वे जो है टू राइट द क्वेरी इज बाय द ऑथर और द ऑर्गेनिज्म नेम, ठीक है। आप ऑथर का नाम, ऑर्गेनिज्म का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया एजुबल एंड राइजोबियम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो पेपर ओपन करेगा जो कि, या वो सीक्वेंस आपका ओपन करेगा विच इज डेवलप्ड बाय ऑसुबल एंड आइसोलेटेड फ्रॉम राइजोबियम, ओके। then you can use boolean operators like and, or, and not. So these are the the way to write query in SRS. You can search by accession number, you can search by author or the organism name, and you can use the boolean operator to make the query specific. See, this is the home page of EMBL EBI, ठीक है। आपका जो भी SRS क्या है, इट इज अ सर्च इंजन ऑफ EBI, जैसे एंटरेज इज द सर्च इंजन ऑफ NCBI, similarly SRS is the search engine of EBI. All the databases of EBI are actually present on SRS, ठीक है। This is the home page of EMBL EBI. Here you can select the database. यहाँ पे आप database select कर सकते हो, और ये this is the search box, ठीक है। यहाँ पर आप अपना जो भी query है उसको search करोगे। देन या ये आपका यहाँ पे क्लिक किया तो ये होम पेज आ गया। देन सेकेंड इज सर्विस, आप सर्विस पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ सर्विस पे मैंने क्लिक किया है, तो ये आपका जो भी टूल्स और डेटा रिसोर्सेस आपके एसआरएस में प्रेजेंट है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। देखो टूल्स यानी कि आपके एनालिटिकल टूल विच इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द डेटा, एंड दिस आर द डेटा रिसोर्सेस। जैसे क्लस्टाल ओमेगा, देखो यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन भी दिया है। क्लस्टाल ओमेगा इज अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट of DNA and a protein sequence. Clustal omega replaces the older Clustal W alignment tool. Clustal W is the older version, omega is the new version. Then InterProScan, BLAST protein, BLAST nucleotide, HMM, ER, these all are the tools used for the analysis of your biological data. Then the data resources present in EBI are Assemble, UniProt. UniProt क्या, it is the database of protein sequence. Then PDB, it is the database of 3D structural data from the of biological molecule. अगर कोई भी biological molecule का आप 3D structure निकालते हो तो उसका डेटा काय में सबमिट होता है, आपका PDB में सबमिट होता है। ये आपका यूनिट 4 में है। देन यूरोप PMC, जैसा ये एंटरीज में आपका पबमेड था विच इज अ लिटरेचरल डेटाबेस, वैसे SRS में आपका यूरोप PMC होता है, ठीक है। PMC इज द लिटरेचरल डेटाबेस ऑफ EMBL, ठीक है। देन एक्सप्रेशन एटलस, इस प्रकार से बहुत सारे डेटाबेस डेटा रिसोर्सेज जो है आपके EMBL EBI में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द सर्च, जैसे आपने EBI में अपन ने सर्च किए, यहाँ पे आई हैव सर्च बाय यूजिंग द जीन एंड द ऑथर नेम, ठीक है। कैड इज द नेम ऑफ द जीन एंड बाफना इज द ऑथर्स नेम। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, सर्च डालोगे तो इट विल शो यू द डेटाबेसेस which contain the information regarding CAD BAFNA, ठीक है। आपके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है, प्रोटीन सीक्वेंस प्रेजेंट है, लिटरेचर एंड सैंपल एंड ऑन्टोलॉजीज, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया इट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड डेटाबेस। तो ये CAD BAFNA का इंफॉर्मेशन जैसे 4 डेटाबेसेस में प्रेजेंट है तो वो चारों के लिंक्स यहाँ पे शो कर रहा है। फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट, आपको न्यूक्लियोटाइड देखना है, प्रोटीन सीक्वेंस देखना है, लिटरेचर देखना है, अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन यू कैन सेव योर रिजल्ट, यू कैन क्रिएट RSS। RSS फीड यानी क्या होता है, टू स्टे अप टू डेट ऑन द न्यू कंटेंट यू केयर अबाउट, है ना। जैसे अगर कैड बाफना का अगर मुझे कोई भी नया सीक्वेंस अगर आता है, या फिर ये सीक्वेंस में कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई भी अपडेट हुआ है, अगर ये मुझे जानना है, इसका अपडेट मुझे चाहिए, तो मैं RSS क्रिएट करूंगी तो आई विल गेट द नोटिफिकेशन, है ना। तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि कैड बाफना का और भी पेपर पब्लिश हुआ है, या फिर नया सीक्वेंस सबमिट हुआ है, या ऑलरेडी सबमिटेड सीक्वेंस में कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट RSS। RSS क्रिएट करते हैं
कोई भी चीज का हमको जो भी हमने सर्च किया जिसका हमको आरएसएस चाहिए तो उसका अपडेट हमको मिलता रहे। देन यहाँ पे मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया, 2 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने इस पहले वाले को ओपन किया, तो ओपन किया हमने, तो देखो यहाँ पे आपका पूरा उसका इंफॉर्मेशन ओपन हो गया कि ये जो आपका के एक्स, देखो यहाँ पे 2 लेटर है और उसके बाद 6 डिजिट होगा, 692616, दिस इज द एक्सेशन नंबर। ठीक है, इसको हम एक्सेशन नंबर बोलते हैं, विच इज गिवन टू द डीएनए और द प्रोटीन सीक्वेंस रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में जितने भी सीक्वेंस है, सारे सीक्वेंस को एक आईडी दी जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेशन नंबर। ओके, तो ये एक्सेशन नंबर से हमको पता चल गया। देखो इसका ऑर्गेनिज्म क्या है, एस्परजिलस टेरस, एक्सेशन नंबर, मॉलिक्यूलर टाइप, जीनोम, टोपोलॉजी क्या है, बेस काउंट, देन डेटा क्लास। ठीक है, एएनए जो है उसने क्या किया है, उसमें जितना भी डेटा प्रेजेंट है उनको अलग अलग क्लास में उन्होंने डिवाइड किया है। तो ये जो एस्परजिलस टेरस का ये जो सीक्वेंस है, इसको इसमें क्लासीफाई किया है, एसटीडी क्लास में उसने उसको डाला है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द स्ट्रेन कौन सा है, C2। देन आइसोलेशन सोर्स क्या है आपका, मैनग्रोव सॉइल फ्रॉम वेयर दिस एस्परजिलस टेरस हैज बीन आइसोलेटेड। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। देन आपको सीक्वेंस EMBL फॉर्मेट में देखना है कि फास्टा फॉर्मेट में देखना है, जैसे अपन ने NCBI में देखा था आपका जीन बैंक। ठीक है, जीन बैंक फॉर्मेट एंड फास्टा फॉर्मेट, वैसे आपका EMBL EBI में क्या होता है, आपका EMBL फॉर्मेट होता है और एक फास्टा फॉर्मेट होता है। यू कैन डाउनलोड द सीक्वेंस, आप सीक्वेंस को डाउनलोड कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, यू कैन सी द पब्लिकेशन। ठीक है, कौन से पेपर में ये सीक्वेंस आपका पब्लिश हुआ है वो देख सकते हो। सीक्वेंस, दिस आर द क्रॉस रेफरेंसेस, जैसा कि इवन दो यू आर ऑन द न्यूक्लियोटाइड आर्की, आप यहाँ से टेक्सोनोमिक डेटाबेस में भी जा सकते हो, यूरोप PMC में भी जा सकते हो। यूरोप PMC आपका लिटरेचरल डेटाबेस हो जाएगा। अब जैसे आपने सीक्वेंस वर्जन को क्लिक किया, तो इसको क्लिक करोगे तो आप ये पेज में आ जाओगे। यहाँ पर देखो आपका एक्सेशन नंबर दिया है, सीक्वेंस वर्जन इज 1। कितने बार ये वर्जन जो है वो 1 2 3 4 ऐसा बढ़ते जाता है। 1 है इसका मतलब इसमें कोई भी जब ये सीक्वेंस सबमिट हुआ था और अभी वो सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं आया। तो देखो फर्स्ट पब्लिश 15/17, लास्ट भी आपका वही है क्योंकि वर्जन आपका नहीं चेंज हुआ है। You can see the sequence in EMBL or in the FASTA format. ठीक है, EMBL format देखो, it will start with a name SQ। जैसे अपन ने जीन बैंक फॉर्मेट में क्या देखा था, इट विल स्टार्ट विथ ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होता था आपका सीक्वेंस। EMBL फॉर्मेट आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, SQ से स्टार्ट होगा। ठीक है, कितने बेस पेयर क्या है उसमें, एडेनिन कितना है, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिडिन कितना है, ये सारे उसके नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद आपका ये सीक्वेंस स्टार्ट हो गया है एंड इट विल एंड विथ डबल लैश। वैसे इसका फास्टा फॉर्मेट अगर आप क्लिक करोगे तो आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था, इट विल स्टार्ट विद अ साइन ग्रेटर देन साइन से वो स्टार्ट होगा। फिर देखो यहाँ पे आपका एक्सेशन वर्जन दिया है, देन टाइटल दिया है पेपर का, देन उसके सीक्वेंस स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे एंड में कोई भी आपका डबल लैश नहीं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप पब्लिकेशन में क्लिक करोगे, पब्लिकेशन में क्लिक करने से वो आपका पेपर ओपन हो जाएगा जहां पर ये सीक्वेंस आपका पब्लिश्ड हुआ है। देखो यूरोप PMC, जैसा आपका एंट्री सिस्टम में आपका पबमेड था, इन EMBL इट इज यूरोप PMC। यू कैन सी द एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन सी द फुल पेपर, you can see how to cite the article, date, similar article, data, sorry, similar article, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। You can see the notification, get citation, you can open the paper on PDF, you can claim to watch it. सी गेट साइटेशन में अगर आप क्लिक करोगे तो ये कैसे अपने को ये पेपर साइट करना है वो अपने को पता चल जाएगा। सी दिस इज द नेम ऑफ ऑथर, दिस आर द नेम ऑफ ऑथर, दिस इज द टाइटल, देन Indian Journal of Microbiology, this is the name of journal in which it is published, then
देन आपका वॉल्यूम नंबर, POI, ये सारा चीज़ है। यू कैन सेलेक्ट द डिफरेंट फॉर्मेट, डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। देन नेक्स्ट वे इज द एडवांस सर्च। ये आपका नॉर्मल सर्चिंग हो गई। एडवांस सर्च में जा सकते हो। देखो एडवांस सर्च यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है। एडवांस सर्च में आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा टाइप, ना किस टाइप का आपको डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको यहाँ पे डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यू कैन क्रिएट योर क्वेरी, आप अपना क्वेरी क्रिएट करोगे जिसमें यू कैन इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, यानी एंड और एंड नॉट लगा के आप अपना क्वेरी डेवलप कर सकते हो। यू हैव टू सेलेक्ट द फील्ड, है ना, वहाँ पे आप फील्ड पर्टिकुलर ऑथर का ही अगर आपको सीक्वेंस देखना है, पर्टिकुलर ना, अगर आपको डेट वाइज कस्टमाइज करना है ना, वो सारे टू क्रिएट द एडवांस सर्च क्वेरी। ठीक है, डेटा फिल्टर्स भी फिल्टर करते हो, तो ये सारी सर्च क्वेरी क्रिएट करते। सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द इंक्लूजन एक्सक्लूजन, यू कैन सेलेक्ट द ऑथर, बुक, डेट ऑफ पब्लिकेशन। व्हेन सर्च कर रहे हो तो आप वहाँ पे ECRN नंबर भी डाल सकते हो। देन यू द डाटा फिल्टर्स, ना अपन ने फिल्टर्स पता ही अपने को, जैसे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस देखना है, या फिर क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर ईयर पे ही आपको पेपर्स देखना है, तो वो पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द सर्च आप ऑफ आर्की यू चूज टू सर्च अगेंस्ट, है ना। सबसे पहले हमको डेटा टाइप, यू कैन देन बिल्ड योर सर्च क्वेरी टू स्पेसिफाई व्हाट you are looking for and select what field you want to retrieve from your search. There are additional options to include a specific data set as well as filter the number of results you wish to return. ठीक है, देन उसके बाद एक क्या है आपका रूल स्पेस। देखो है रूल स्पेस, अगर आपने अभी जो है, जो भी आपने क्वेरी डेवलप की है, ठीक है, इंक्लूड किया, एक्सक्लूड किया है, फिल्टर्स लगा है, फील्ड सेलेक्ट किया है, अगर आपको यही फिल्टर्स के साथ आगे भी सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को हम रूल स्पेस रूल बना देते हैं। तो क्या होगा, आपको हर एक क्वेरी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद से ही आ जाएगी। यू कैन सेव दिस एज अ रूल यूजिंग द रूल स्पेस, है ना। अगर आपके पास यहाँ पे लॉगिन आईडी है तो आप क्या करोगे, रूल स्पेस में जाके जो भी आपने यहाँ पे क्वेरी बनाई है उसको अपन एज अ रूल सेव कर सकते हैं। तो फिर आप रूल स्पेस में को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका सर्च बॉक्स है वो ये सारे फिल्टर्स को ले लेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सेस द सेम डेटा प्रोग्रामेटिकली यू कैन कॉपी द प्रोड्यूस्ड टूल रिक्वेस्ट एंड रन दिस योरसेल्फ अगेंस्ट द ENA पोर्टल EPI। अगर आपको सेम चीज का डेटा क्या बोलते हैं पीरियोडिकली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखना है क्या हुआ है, क्या मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें, तो हम यहाँ पे ENA पोर्टल API क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे आपको नोटिफिकेशन आते जाएगा खुद से ही, जो क्या बोलते हैं नेट है वो खुद से ही उसको सर्च करेगा और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर ये अभी अपडेट हुआ है। ठीक है, देन द लास्ट इज द सपोर्ट गाइड। अगर आपको नहीं पता है हाउ टू यूज द ENA, तो यू कैन गो टू द सपोर्ट गाइड। यहाँ पे गाइडलाइन है, ट्यूटोरियल्स है, यू कैन सी द इंट्रोडक्टरी वेबिनार, है ना। यू कैन यहाँ पर आप अपना जो भी क्वेरी है वो डाल सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ENA में हाउ टू सबमिट द डेटा, ENA डेटा डिस्कवरी एंड रिट्राइवल, हाउ टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द ENA, अपडेट डेटा ऑन द ENA, यू कैन सी फ्रॉम हियर, अपन यहाँ से देख कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट SRS। ये मैं आप लोग को इसमें भी करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे अपन जैसे EMBL
EMBL EBI के आप होम पेज में जाओगे, ठीक है। देखो दिस इज द होम पेज ऑफ EMBL EBI, होम पेज, सर्विस, रिसर्च, ट्रेनिंग, अबाउट। आपको देखना है कि ये आपका होम पेज हो गया, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको डेटाबेस में सर्च करना है, लिटरेचर, प्रोटीन, डिसीज, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द क्वेरी बॉक्स जहाँ पे आप अपना क्वेरी लिखोगे। देन नेक्स्ट इज द सर्विसेज, कौन कौन से आपके यहाँ पे डेटा रिसोर्सेज और प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सप्लोर ऑल आवर डेटा रिसोर्सेज एंड टूल्स, यहाँ पे जैसे अपन ने क्लिक किया, देखो यहाँ पर आ गया ये आपका EMBL EBI डेटा रिसोर्सेज एंड टूल्स। अगेन यहाँ पे फिल्टर्स प्रेजेंट है, यू कैन रिफाइन। जैसे अपने को सिर्फ डेटा रिसोर्सेज देखना है तो डेटा रिसोर्सेज को क्लिक दो, टूल्स बस देखना है तो टूल्स को क्लिक कर दो। यू कैन सेलेक्ट द कैटेगरीज, ठीक है, विच टाइप ऑफ डेटा, फिल्टर्स लगा सकते हो यहाँ पे। यू कैन सॉर्ट बाय A to Z और Z to A, है ना। जैसे मैंने टूल्स में आप is a multiple sequence alignment tool for the protein and the DNA sequences। यहाँ पे आप मल्टीपल सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हो। ये सारे टूल्स है, ब्लास्ट है, जैसे इज अ फास्ट लोकल सिमिलैरिटी सर्च टूल फॉर द प्रोटीन सीक्वेंस डेटा, ना। अगर आपने कोई नया सीक्वेंस आपने आइसोलेट किया है तो हम उसको ब्लास्ट करते हैं, तो ब्लास्ट क्या करता है, वो क्वेरी सीक्वेंस को उसके डेटाबेस में जितने भी सीक्वेंस है उसके साथ कंपेयर करता है, और इट विल गिव यू द टॉप 100 सीक्वेंसेस विच आर क्लोजली रिलेटेड टू योर क्वेरी सीक्वेंस। सारे पे टूल्स प्रेजेंट है, कि अगर आपको उसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो इसको अपन क्लिक कर दोगे। तो कुछ क्या होता है यहाँ पर आप ये चीज पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप भी बता रहा है हाउ टू यूज द ब्लास्ट, ये अपन यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिप्रोट, देन उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे देखना है कौन कौन से डेटा रिसोर्सेस हैं आपके EMBL EBI में, है ना। तो एल्वा फोल्ड डेटाबेस, बायो मॉडल, कैम EMBL, तो इसका भी आपका नीचे आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्हाट दैट पर्टिकुलर डेटाबेस इज कंटेनिंग, ठीक है। जैसे यूरोप PMC इज अ डेटाबेस टू सर्च द वर्ल्ड वाइड लाइफ साइंस लिटरेचर, सारे लिटरेचरल डेटाबेस जो है आपका यूरोप PMC में प्रेजेंट है। देन यूनिप्रोट है ना, यूनिप्रोट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स फॉर द प्रोटीन सीक्वेंस एंड फंक्शनल एनोटेशन। यूनिप्रोट इज द डेटाबेस फॉर protein sequences। PFARM is a database of conserved protein family and domain। PFARM is the member database of Interpro। तो यहाँ पे सारी लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका डिटेल भी लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हो। एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जाके भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अलग अलग आप सेलेक्ट करोगे, 5 पेजेस हैं टोटल, ठीक है। तो ये आपके हो गए सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज आपके EMBL EBI में प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन से डेटा रिसोर्सेज और कौन कौन से टूल्स प्रेजेंट है वो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। देन रिसर्च में आप क्लिक करोगे तो सर्च, ऑनगोइंग रिसर्च ऑन EMBL EBI, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ, ठीक है। लेटेस्ट रिसर्च न्यूज, ये सब आप यहाँ पर जाके क्लिक करके पढ़ सकते हो। रिसर्च अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं, पब्लिकेशंस देख सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। मेजर रिसर्च पार्टनरशिप कौन कौन है, इनकी चीजें पर आके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग, ऑनगोइंग ट्रेनिंग कौन कौन सी चल रही है, ऑन दैट ट्रेनिंग, वो सब चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। EBI ट्रेनिंग, तो यहाँ पे दिया है लाइव वेबिनार, कौन कौन से टॉपिक पे ट्रेनिंग्स चल रही है वो अपन देख सकते हैं। उसमें कैसे हमको रजिस्टर होना है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देन अबाउट अस, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट EMBL EBI क्या है तो आप यहाँ पे आके उसकी स्टडी कर सकते हैं। हु वी आर, आवर मिशंस, आवर साइंटिफिक प्रोग्राम, फंडिंग, ये सारी चीज़ें, फाउंडर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ओके। सो कमिंग टू द होम पेज, जैसे यहाँ पर हमने
सेलेक्ट किया। चलो कैट बाफना का ही मैं आपको सेलेक्ट करके बताती हूँ, सर्च कर दो। ठीक है, कैट इज द नेम ऑफ द जीन एंड बाफना इज द नेम ऑफ ऑथर। तो टोटल हमको कितने रिजल्ट्स मिले? 5 रिजल्ट्स मिले। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस एंड लिटरेचर। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको क्या पढ़ना है। आपको कैट बाफना का न्यूक्लियोटाइड देखना है, प्रोटीन सीक्वेंस देखना है या लिटरेचर। जैसे अब मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यू कैन सेव योर रिजल्ट, यू कैन क्रिएट आरएसएस। आरएसएस मैंने बताया आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर कोई भी नया पेपर, नया सीक्वेंस अगर कैट बाफना का आता है, या फिर ये जो सबमिटेड सीक्वेंस अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, अपग्रेडेशन होता है, तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन बाय क्रिएटिंग आरएसएस। ओके, सेलेक्ट कर दिया इस सीक्वेंस को। देखो यहाँ पे अगेन ये क्रॉस रेफरेंसेस दे रहा है। इवन दो यू आर ऑन द न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, it is showing you the cross reference of protein family, protein sequence, nucleotide sequence, लिटरेचर, सैंपल एंड ऑन्टोलॉजीज। ये सारी चीजें वो आपको यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंसेस को दे रहा है। यू कैन स्विच फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस टू द प्रोटीन सीक्वेंस डायरेक्टली। देन फॉर्मेट, आपको ईएमबीएल फॉर्मेट में सीक्वेंस देखना है या फास्टा फॉर्मेट में, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब जैसे मैंने पहले वाले को क्लिक कर दिया, I have clicked the first one. So now you are in European nucleotide hierarchy. See, this is the accession number and this is the description. है ना, ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है आपका? एस्परजिलस स्टेरस, एक्सेशन नंबर, मॉलिक्यूलर टाइप, टोपोलॉजी, बेस काउंट, डेटा क्लास, डिवीजन, स्ट्रेन, प्रोडक्ट क्या है उसका, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया है। कितने कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन इज 3। देन you can view the sequence in EMBL or in the FASTA format. You can download, you can navigate, you can see the मैं आपको EMBL फॉर्मेट दिखाती हूँ। ये आपका EMBL फॉर्मेट ओपन हो गया। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में मैंने एंटरेज में आपको जीन बैंक ओपन किया था, लोकस, एक्सेशन नंबर, ऐसा पूरा पूरा लिखा हुआ था। पर ये शॉर्ट फॉर्म है। IDPA, DT मीन्स डेट, डेट ऑफ लास्ट अपडेट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये सब हर डेटाबेस का अपना एक फॉर्मेट होता है। देखो ईएमबीएल फॉर्मेट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? एसक्यू से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर, देन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन कितने कितने बताया है, फिर आपका सीक्वेंस है, एंड इट विल एंड विद डैश। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ईएमबीएल। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे मैंने फास्टा में हमको देखना है तो आप फास्टा क्लिक करोगे। फास्टा फॉर्मेट कैसा रहता है? इट विल स्टार्ट विद अ साइन ग्रेटर देन एक्सेशन नंबर, वर्जन, पार्शियल सीज एकोटिनिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज का सीक्वेंस है ये आपका सीक्वेंस आ गया। एंड में यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। दिस इज द फास्टा फॉर्मेट। ओके, आ जाएगा पेपर आ जाएगा ऑन विच दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना। जैसे मैं इसका यूरोप पीएमसी ओपन करूंगी तो देखो आप लिटरेचरल डेटाबेस में आ गए। ठीक है, दिस इज द पेपर इटाकोनिक एसिड प्रोडक्शन बाय फिलामेंटस फंगस इन स्टार्च रिच इंडस्ट्रियल रेसिड्यू। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ द जर्नल, डेट, ये सब मिल गया हम लोगों को। देन यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको फुल टेक्स्ट देखना है, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, आपको फुल पेपर मिल जाएगा। देखो इंट्रोडक्शन आ गया, रिजल्ट्स देखना है उसका, मटेरियल मेथड देखना है। यहाँ पे जो जो आप क्लिक करोगे वो अपना ओपन हो जाएगा। इफ यू वी वांट टू सी हाउ टू साइट दिस आर्टिकल तो गेट साइटेशन में चले जाओगे तो आपको ये देखो, द नेम ऑफ ऑथर, टाइटल, देन नेम ऑफ जर्नल, देन डेट, देन वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, DOI है ना, यू कैन कॉपी, यू कैन ईमेल। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी द PDF। अगर आपको PDF देखना है इस पेपर का तो PDF में क्लिक कर दो। देखिए इसका आपका पेपर आ गया। दिस इज
माय PhD पेपर, ठीक है, रिचा बाफना, ठीक है। ये आपका ये पेपर आपका ओपन हो गया, ठीक, पूरा पेपर आप देख सकते हो। ये चीज है आपका यहाँ पे, ओके। So you can see the sequence, you can see the publication, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू वांट टू गो, ये आपका नॉर्मल सर्चिंग हो गया। इफ यू वांट टू गो टू द एडवांस सर्च, अपन एडवांस सर्च में क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा टाइप, है ना। आपको कहाँ से डेटा सर्च करना है, आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखना है, सैंपल देखना है, आपका डेटा टाइप क्या है, अपन जैसे जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यू हैव टू क्रिएट द क्वेरी, यू कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड बाय यूजिंग एंड और एंड नॉट। फिर आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ऑथर है, बुक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ENRN नंबर। अगेन यू कैन ऐड द फिल्टर्स, फिल्टर लगा सकते हो। तो इस टाइप से आप एडवांस सर्च की क्वेरी क्रिएट करोगे। देन अगर आपको सेम टाइप का सर्च बाद में भी करना है, देन यू कैन सेव दिस एज अ रूल यूजिंग द रूल स्पेस। देखो यहाँ पे ये रूल स्पेस है। इफ यू हैव द लॉगिन आईडी, अगर आपके पास लॉगिन है इसका EMBL EBI का, तो आप यहाँ पे इसको रूल स्पेस जैसा क्रिएट कर दोगे तो सेम फिल्टर्स आपके हमेशा लगेंगे, आपको बार बार क्वेरी बिल्ड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने ENA पोर्टल क्रिएट कर लिया है तो जो भी उस पर्टिकुलर जो भी आपने सेलेक्ट किया उसमें जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सेस द सेम डेटा प्रोग्रामेटिकली, you can copy the produced क्रूएल रिक्वेस्ट and run this yourself against the ENA portal API। आपको खुद से सर्च नहीं करना पड़ेगा, जो आपका ENA पोर्टल है वो खुद से ही सर्च करके आपको भेजेगा जो भी लास्ट अपडेट हुआ रहेगा, ठीक है। देन सपोर्ट में है आपका गाइडलाइन। अगर आपको फिर भी ENA यूज करने में कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो यू कैन गो टू द गाइडलाइन एंड ट्यूटोरियल। इट विल टेल यू हाउ टू सबमिट डेटा टू द ENA, हाउ टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द UNA, हाउ टू अपडेट डेटा। अगर आपने कोई सीक्वेंस सबमिट किया हुआ है ENA में, अगर आपको उसमें कुछ अपडेट करना है तो वो कैसे करना है वो भी अपन यहाँ पे जाके देख सकते हैं। देयर इज वन इंट्रोडक्टरी वेबिनार, अगर आपने इसको देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू यूज द ENA, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट SRS